Hey guys, welcome to HR with Sanchita. So today we will be discussing reinforcement theory of motivation in this video, which is given by B.F. Skinner, which is important for all the HR students and all the people appearing for competitive exams related to HR. So yes, like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can get updates related to my video, and also follow my Telegram channel, which is by the name HR with Sanchita, in which you will get all the updates related to my videos and classes over various platforms. So now let's start the reinforcement theory of motivation. So the reinforcement theory is based on the law of effect concept. अब सबसे पहले आप इसमें मेन चीजें अंडरस्टैंड करो जो मैं आपको बताऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर दैट reinforcement theory is based on the law of effect. Now what this law of effect means is that individuals are likely to repeat those actions having positive consequences and will avoid those behaviors that result in negative or unpleasant outcomes. This is true for every one of us, right? So the behaviors that have negative consequences or negative outcomes, so we avoid those behaviors and we would repeat those behaviors or those actions which have positive outcomes or positive consequences, right? तो जिसका हमें लगेगा इससे हमें कुछ पॉजिटिव आएगा हमारी लाइफ में, तो वो उन बिहेवियर्स को भी रिपीट, और जिससे लगता है कुछ अनप्लेजेंट हो सकता है, ठीक है, सो उन बिहेवियर्स को हम अवॉइड करते हैं. सो दिस इज द लॉ ऑफ अफेक्ट इन reinforcement theory. Okay, now let's see what is there in the next part of the video. Now let's see this important table, okay, which describes the reinforcement theory of motivation in brief. So देखिए यहाँ पे ये green वाले जो हैं, these are the driving forces, और ये जो ऑरेंज वाले हैं ये रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस होते हैं. जैसे चेंज में भी ड्राइविंग और रिस्ट्रेनिंग होते हैं. सो व्हाट आर दीज ड्राइविंग फोर्सेस इन ग्रीन? सो ड्राइविंग फोर्सेस एनकरेज गुड बिहेवियर. तो ये जो दोनों ड्राइविंग फोर्सेस हैं, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ये मैं आपको बताऊंगी, इनके एग्जांपल्स भी दूंगी. पहले आप समझिए कि ड्राइविंग फोर्सेस क्या है और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या है. सो दीज ग्रीन वंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, encourage good behavior. तभी ये reinforcements हैं दोनों, because they are reinforcing the new behavior, encouraging the good behavior, and they are reinforcing good behavior. So these encourage good behavior. और जो ये orange वाले हैं, punishment and extinction, restraining forces aim to limit or stop a poor behavior, right? So here what it is done, in punishment stimulus is added and in extinction stimulus is removed. Now let's study what are these. अब देखो पॉजिटिव reinforcement क्या होता है. पॉजिटिव reinforcement is a reward you give to an employee when they exhibit desirable behavior. अब आपको भी ऐसा होता होगा, whenever you did something good when you were a child, your parents used to reward you, they used to praise you, right? Or they used to give you some gift. ओके, सो दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ताकि आप फिर से अच्छे मार्क्स लाओ या आप फिर से अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले करो, राइट? सो इन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, इफ यू परफॉर्म गुड, राइट, यू कम एवरी डे ऑन टाइम, राइट, यू आर रिवॉर्डेड, एंड इफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर sales or you are doing very well in your operations, then you become best employee of the month. So that is the positive reinforcement that you get. That means that if you would get rewarded and praised, then you would display the behavior again and again, because you know that you are getting positive consequences of it. So this is positive reinforcement. Then what is negative reinforcement? So negative reinforcement is when an employee is rewarded for desirable behavior by having something unpleasant removed. अब यहाँ पे भी desirable behavior को reward किया जा रहा है, but कैसे? Something unpleasant is removed. ठीक है, कुछ चीज जो unpleasant है उसको remove करके reward दिया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. फॉर एग्जाम्पल आपने एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, ठीक है, यू ज्वाइन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अब आपका बॉस क्या करता है, आपका बॉस डेली जाने से पहले, जैसे आपका 6 PM घर वापस जाने का टाइम है, अब आपको 5 PM रोज बॉस के पास जाना होता है और पूरा दिन का आपको पूरा टाइम टेबल देना होता है कि आपने क्या क्या किया, पूरी टाइम शीट देनी होती है कि इतने से इतने बजे तक मैंने ये किया है, फिर 12 से 2 मैंने ये किया, 2 से 3 लंच किया, फिर 3 से 5 ये किया, ठीक है. आपको पूरे घंटे का, आपको हर एक आवर का आपको उसको हिसाब देना होगा बॉस को कि आपने ये किया है.
ठीक है। अब आपके बॉस देख रहे हैं कि आप रोज अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ व्हाट ही वुड डू इज आफ्टर सम टाइम वो कहेंगे कि ठीक है, अब रोज रोज घर जाने से पहले मेरे पास आपको आने की जरूरत नहीं है और सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आप मंथ में एक बार मुझे अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता दिया करो, ठीक है। तो अब आप बताइए, रोज रोज आप जा रहे थे, ठीक है, रोज रोज आप अपने बॉस के पास जा रहे थे और उसे पूरे दिन का हिसाब दे रहे थे, सो दैट वाज समथिंग अनप्लेजेंट, ओके। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको भी बर्डन सम फील होता होगा, बट अब बॉस ने आपका देखा कि आप तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, ठीक है, आप काम से नहीं भाग रहे हो और अपनी फुल एफर्ट्स डाल रहे हो, राइट। तो अब क्या कर दिया उन्होंने, ये चीज रिमूव कर दी, समथिंग अनप्लेजेंट रिमूव। अब उन्होंने कहा ठीक है, यू आर परफॉर्मिंग वेल और आप टाइम से हर चीज कंप्लीट करते हो, सो नाउ यू कैन जस्ट द चेकिंग सिस्टम जो वो रोज करते थे आपको चेक, तो वी कैन जस्ट डू इट वंस पर मंथ एंड नॉट एवरी डे। अब आपको हर बार जैसे घर जाने से पहले ये नहीं सोचना पड़ेगा यार अब बॉस को सारी डिटेल्स देनी है, अब इट विल बी डन जस्ट वंस पर मंथ। सो दिस अनप्लेजेंट थिंग वाज रिमूव्ड, दिस अनप्लेजेंट प्रैक्टिस of every day going to boss and telling him what you have done in a day, giving account of each and every minute, each and every hour is being removed. So अब देखो ये रिमूव बॉस ने क्यों किया, क्योंकि आप अपना अच्छे से काम कर रहे थे, उनका आप पे ट्रस्ट आ गया, right? So now he trusts you that you will do the job, okay, and you are completing your everyday work, right? So now this is also a negative reinforcement. Now you would think कि जब मेरे बॉस ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया है कि अब वो मंथ में मेरा काम एक ही बार चेक करेंगे, तो अब आपको लगेगा कि हाँ ही इज ट्रस्टिंग मी, तो मुझे अच्छे से अपना काम करना चाहिए रोज, राइट? सो दिस इज द नेगेटिव reinforcement. Now comes punishment. Now punishment यूज, अब देखो अब इस पीछे वालों में हम reinforce कर रहे थे गुड बिहेवियर को, ठीक है। अब यहाँ पनिशमेंट में क्या है, हम क्या करते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर को अवॉइड करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो पनिशमेंट हैपेंस व्हेन यू यूज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। और अनडिजायरेबल बिहेवियर को कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाय यूजिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? सो पनिशमेंट हैपेंस व्हेन यू यूज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इन द वर्क प्लेस टू डिटर और स्टॉप टीम मेंबर्स फ्रॉम अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज रोज लेट आ रहे हैं तो फिर आपको एक रिटन वार्निंग इशू कर दी, आपने किसी के साथ बदतमीजी की ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आपको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सस्पेंशन होना, रिटन वार्निंग इशू होना, सो दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, ओके। सो अब आप बताइए, अगर आपको पता होगा कि ऐसे बिहेवियर का अगर हम लेट आएंगे, रोज रोज लेट आएंगे, तो हमको एक वार्निंग इशू होगी, सो दिस इशूएंस ऑफ वार्निंग इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। सो आप ये बिहेवियर कम करेंगे क्योंकि आपको पता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर अब जैसे अब आप ये भी सोचेंगे, अगर आप किसी एम्प्लॉय के साथ किसी और एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करेंगे तो फिर यू कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम योर जॉब ऑल्सो, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। सो पनिशमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग the bad behavior, the undesirable behavior through a negative consequence, okay? So punishment is different from negative अब देखो negative reinforcement और punishment में difference है। आप negative reinforcement में क्या कर रहे थे, आप एक undesirable चीज को remove कर रहे थे, जैसे हमने वो रोज रोज का checking system remove किया। अब punishment में आप क्या कर रहे हो, एक negative consequence add कर रहे हो, दे रहे हो, right? that for क्या, जैसे यहाँ पे आप लेट आए तो आपको एक रिटन वार्निंग दे दी, आपने किसी के साथ बदतमीजी की तो आपको सस्पेंड कर दिया गया, राइट? सो दिस इज पनिशमेंट. Now comes the extinction. So extinction refers to stopping someone's learned behavior or withholding the positive reinforcement that led to that behavior in first place. ठीक है, देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, किसी का जो learned behavior है वो stop करना चाहते हैं हम, okay? So by withholding the positive reinforcement that led to the behavior at the first place. Now so this is also called absence of reinforcement, extinction. इसमें because we withhold the positive reinforcement. अब आप बहुत ध्यान से मेरा एक example सुनो। पहले ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारा काम आया, ठीक है, बहुत सारा काम आया ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोगों को जिस वजह से, एम्प्लॉयज को जिस वजह से ओवर टाइम करना पड़ा, ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो फिर कंपनी ने क्या किया, ओवर टाइम के लिए खूब सारे डबल ट्रिपल पैसे कर दिए, ठीक है, कि जो जो ओवर टाइम वर्क करेंगे उनको उनके पर डे के हिसाब से ट्रिपल रेट मिलेगा,
ठीक है, तो खूब सारा अच्छा बोनस दिया रोज ओवर टाइम करने के लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत सारा काम आ रहा था। अब तो वो क्या था, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था ना, कि जो ज्यादा काम करेंगे उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। सो दैट वाज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ एक्सटेंशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर विद होल्डिंग द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब क्या हुआ कि अब काम उतना नहीं है, ठीक है, पहले आ रहा था, अब इस मंथ में सारी चीजें स्टेबल हो गई हैं, काम उतना नहीं है। तो फिर मैनेजर ने क्या किया, वो जो बोनस मिल रहे थे उनको विद होल्ड कर दिया, ठीक है, सो उनको रिमूव कर दिया, विद होल्ड कर दिया, क्योंकि अब उतना काम नहीं है। तो फिर जिस वजह से क्यों क्यों विद होल्ड किया, ताकि लोग ज्यादा ओवर टाइम ना करें, ठीक है, ज्यादा रुके ना, ताकि उन्हें, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर हम इस ओवर टाइम को हटाएंगे नहीं तो फिर लोग तो जानबूझ के रुकेंगे, काम करेंगे, ठीक है, ताकि उन्हें ओवर टाइम मिले, ट्रिपल रेट मिले, ठीक है, रोज का, राइट। सो अब फिर जब काम ज्यादा नहीं है तो हमने वो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पहले डाली थी इन्वायरमेंट में हमारे, ठीक है, जो बोनस वगैरह डाले थे, अब वो हम उन्हें रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा काम नहीं है तो हम नहीं चाहते कि लोग ओवर टाइम वर्क करें, ठीक है। सो नाउ वी withholded द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ओके, विच लेड टू दैट बिहेवियर इन द फर्स्ट प्लेस। अब पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमने बोनस की दी थी, ओवर टाइम आवर्स की दी थी, ठीक है, तभी तो लोग काम कर रहे थे, ठीक है, तभी लोग रुक रहे थे, काम कर रहे थे, राइट। बट अब हमारे पास इतना काम नहीं है, सो वी आर विद होल्डिंग, नाउ वी डोंट वांट पीपल टू स्टॉप। अब हम नहीं चाहते कि लोग रुकें, ओवर टाइम आवर्स करें, तो तब हमने वो चीज विद होल्ड कर दी, ओके। सो इन अदर वर्ड्स, extinction implies lowering the probability of an undesirable behavior by removing the reward for that kind of behavior। अब हमने withhold कर दिया, remove कर दिया ना वो bonus वाला thing, right? So it became extinct, okay, because now we don't want people to work for overtime hours because we don't have that much of work, ठीक है। अगर हमारे पास काम नहीं है और फिर भी हम लोगों को पैसे देंगे, so that would lead to loss in the organization। That is why we withholded the positive reinforcement। So this is it। So I hope you liked the video and don't forget to subscribe, ठीक है। आप सब लोग videos watch करते हैं but subscribe नहीं करते, subscribe and yes, follow my telegram channel HR with Sanchita as well। I'll provide the link in the comments, okay।